Welcome to my channel C Gayatri's Academy, and today we are going to discuss on the topic notice of board meeting as per Companies Act 2013. Okay, let's start with the topic. It is very important for you. Let's start. Okay, notice of the board meeting. What does it say? नोटिस जो है हर बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस होता है एंड नोटिस को कब सर्व करना है तो वो हमें देखना है. तो दैट इज़ द क्वेश्चन एंड किन को सर्व करना चाहिए. तो हम ऑलवेज देखें हैं कि हमारे क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि टू हुम वेदर अ नोटिस बी सर्व टू अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वेदर इट इज सर्व टू एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन details have been answered here. Let's do the topic. A minimum of 7 days notice must be given to all directors before a board meeting. In urgent matters, a short notice may also be allowed if at least one independent director is present at the meeting. ठीक है, डिटेल्स में देखते क्या बोल रहे हैं. Section 173 provides every board meeting shall be called by giving at least 7 days notice in writing to all the directors, okay, at the registered office or address whether in India or outside India. उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें डिलीवर करना है और उनका एड्रेस होम एड्रेस वॉट एवर वेदर द पर्सन इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. सो 7 days के अंदर में ये गिविंग 7 days नोटिस इन राइटिंग, ठीक है, टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड देयर रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस वॉट एवर हैज बीन गिवन वेदर दे आर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. The notice can be served either by hand delivery or by post or by electronic means. Let's see, meeting of the board of directors may be called on a short notice. अभी हमने किया कि less than 7 days भी हो सकता है if the business which they want to discuss or the transaction is carried out is very urgent. ठीक है, लेकिन तब क्या important है, there should be the presence of an independent director. Okay, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा तो वो जो अर्जेंट मीटिंग किया गया है जिसमें 7 days के कम नोटिस दिया गया है, इन दैट केस what will it happen in the absence, let's see what they, in the absence of an independent director the decision should be circulated to all the directors, okay, and shall be final only on ratification thereof by at least one independent director. अगर कोई independent director नहीं है, okay, लेकिन उसके absence में क्या होगा, उसको जो decision लिया गया है उस मीटिंग में उसको क्या किया जाएगा, circulate to all the directors there and shall be final. कब फाइनल होगा, अगर उसको रैटिफिकेशन किया गया thereof by at least one independent director ratify किया है, in that case only ये valid पकड़ा जाएगा. The fact that it is an urgent meeting in the shorter period of notice should be mentioned in the notice. Notice में भी ये mention कर देना है कि it is a short notice and 7 days के कम notice दिया गया था because the transaction which has to be taken place was very urgent. Okay, the company's meeting of board and its powers rules 2014 क्या बोल रहा है, information regarding the options available to participate. अब जो मीटिंग है बोर्ड मीटिंग्स उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्टर्स, वो बोला गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और ऑडियो विजुअल मीन्स. डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड इन द नोटिस. ठीक है, 2014 का जो रूल्स है वो क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि पार्टिसिपेट क्या कर सकता है, आइदर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में कर सकता है, ऑडियो विजुअल मोड में कर सकते हैं, डिटेल्स देने पड़ेंगे. ऑन रिसीविंग सच नोटिस डायरेक्टर्स intention to participate through either video conferencing or visual note should share his intention to the chairperson or the secretary of the company. ठीक है, अभी उसको नोटिस भेजा गया, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस बेसिस में आपको पार्टिसिपेशन करना है, डायरेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स सब प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, अब जो नोटिस मिला डायरेक्टर को उसको क्या अपने इंटेंशन देना पड़ेगा, वो कैसे उस मीटिंग को अटेंड करना चाहता है, आइदर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल, राइट. इसको किसको करना पड़ेगा, टू द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है डज नॉट इंटीमेट, उसने अपना इंटेंशन को इंटीमेट नहीं किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना चाहता है, तो क्या पकड़ा जाएगा, दैट ही विल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. ठीक है, वो पर्सन में वहाँ पे अटेंड करेगा, ही विल जस्ट गो एंड मीट इन द वेयर द मीटिंग वेन्यू में वो जाके मीटिंग अटेंड करेगा, ये पकड़ा जाएगा. ठीक है, if the director does not intimate his intention to participate in electronic mode, it can be taken that he will attend the meeting in person. The director who desires to participate in audiovisual mode
शुड इन्फॉर्म द कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर के उसको पहले इन्फॉर्म कर देना है कि जो मैं डिक्लेयर करूँ पूरा साल में ऑडियो विजुअल मोड में अटेंड करूँगा मीटिंग. इन दैट केस व्हाट विल द डाटा डू, ही विल inform the company at the beginning of the calendar year, right? And the such declaration will be valid for 1 calendar year from the date of intimation. जब से उसने इंटीमेट किया है कंपनी को कि वो ऑडियो विजुअल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अटेंड करना चाहता है मीटिंग, तब से 1 साल तक उसका मीटिंग वैसे ही वो अटेंड कर सकता है. The notice of the meeting should be mentioning the venue of the meeting. Yes, notice में obviously venue कहाँ पे meeting हो रहा है, and it shall be the place where all the recordings of the meeting are also taking place. कहाँ पे meeting हो रहा है और जो meeting में जितना भी discussion हो सकता है, जो recordings हो रहा है वो भी हो ही कहाँ रहा है, उसी particular venue में, right? Mode of notice. अब notice को कैसे भेजा जाएगा? Notice must be sent in writing via hand delivery, okay, या post, email और other electronic means. आगे उसको डिलीवरी दिया जाएगा पोस्ट में बाय हैंड, ठीक है, या ईमेल और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तो एज पर SS1 एंड कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट डज इट से, द नोटिस कैन बी सेंड थ्रू हैंड डिलीवरी, पोस्ट और कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाया ईमेल, व्हाट्सएप और एनी अदर डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म. कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे ईमेल में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया और एनी डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में आ सकता है. द नोटिस शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड टू एंश्योर प्रूफ ऑफ डिलीवरी. और जो नोटिस दिया गया है उसमें जो उसको प्रॉपरली रिकॉर्डेड, वो जो रिकॉर्ड किया कि कैसे इसको डिलीवरी किया, दैट ऑल्सो हैव टू बी मेंटेन्ड, दैट थिंग हैज टू मेंटेन टू शो द प्रूफ ऑफ डिलीवरी. ठीक है, अभी जो नोटिस भेजा गया किस फॉर्म से भेजा गया, हैंड डिलीवरी गया, पोस्ट और कुरियर में गया है, ईमेल से गया है, व्हाट्सएप में गया है, या कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन किसी और वे से भी गया है, उसका इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करना है सो दैट इट कैन बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड ऑफ सेंडिंग ऑफ द नोटिस. SS1, ओके, SS1 क्या है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन द मीटिंग ऑफ बोर्ड. ये क्या है, ये ISI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का निकला, ये है क्लैरिफिकेशन से पूरा फुल डिटेल्स में बता रहा है कैसे मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड कैसे होने चाहिए. वेयर द डायरेक्टर स्पेसिफाई द मीन्स ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस शैल बी गिवन टू देम इन दैट वेज ओनली. अगर कोई डायरेक्टर बोल दे रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से चाहिए तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही देना है. अगर उसको बोलते हैं मुझे पोस्ट और कुरियर चाहिए मेरे एड्रेस में तो पोस्ट और कुरियर में ही देना है, दैट वे ओनली. सो व्हाट डज SS1 स्टेट्स, वेयर द डायरेक्टर स्पेसिफिकली से मेंशन करते ऐसी वे से मुझे चाहिए, इट शुड बी गिवन टू हिम इन दैट वे ओनली. Notice shall be sent by the company secretary, or if there is no company secretary, by a person who has been authorized by the board for the purpose. अगर किसी बोर्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है किसी कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी भेजेंगे. अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर डूइंग द पर्पस ऑफ सेंडिंग द नोटिस. ओके, नोटिस शैल बी स्पेसिफाई द सीरियल नंबर. ठीक है, सीरियल नंबर बताएगा कौन सा मीटिंग, एवरी मीटिंग का अपना सीरियल होगा, सीरियल नंबर होगा. ठीक है, तो स्पेसिफाई दिस सीरियल नंबर, डेट, ओके, कौन से डेट में हो रहा है, कौन से डे, विच डेट इज ऑफ द मंडे ट्यूजडे वट एवर डे, टाइम कौन से समय में, एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग. नोटिस में सब डिटेल्स में रहेगा, समय, कौन सा दिन है, कौन से वेन्यू में, एवरीथिंग शुड बी देयर एज वेल एज द सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग ऑल्सो. नोटिस का क्या सीरियल नंबर वो भी मेंशन करेगा. इन केस द फैसिलिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज बीइंग अवेलेबल, ओके, देन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स. अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड है अवेलेबल पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो अगर किसी कारण में कोई प्रॉब्लम होता है तो टू होम टू अवेल, टू होम टू कॉन्टैक्ट, या टू होम टू कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग, सो दैट कि आपका इंटेंशन आप बता सको कि मुझे इसको ऑडियो विजुअल मोड में अटेंड करना है. व्हाट विल यू डू, द एड्रेस, द ईमेल एड्रेस and the contact number of the company secretary or the chairman of the company or any other person authorized to whom director shall confirm as to whether they will participate in electronic mode or not in the meeting should also be provided. तो नोटिस में ये सब चीज़ भी रहना चाहिए कि किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा जहाँ से वो अपने को director जान सकते हैं कि whether they can be able to attend the meeting through audiovisual mode or not. Okay, and that everything should provide in the notice. Contact number of this company secretary or the chairman or any person who has been authorized for attending such meetings, calls related to the delivery of the meeting in the form of audiovisual mode or any other mode, video conferencing. So वो information भी यहाँ पे provide करना चाहिए. The agenda, setting out the business to be transacted. Okay,
notes to the agenda, everything should be sent to the directors along with the notice of the board meeting. बोर्ड मीटिंग के नोटिस के साथ साथ में एजेंडा क्या ट्रांजैक्शन वहाँ पे किया जाएगा, और नोट्स टू द एजेंडा, एजेंडे के साथ में कोई इन्फॉर्मेशन है जो देना है जो इम्पोर्टेंट है, दैट शुड ऑल्सो गो अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग. Every meeting and the items of business to be taken up should be serially numbered. Everything should be serially numbered and clearly shown. Every company should maintain the proof of sending notice, agenda and notes of agenda. नोटिस, एजेंडा एंड नोट्स ऑफ एजेंडा, हर कंपनी को प्रूफ रखना है कि उसने अपने डायरेक्टर्स को भेजे हैं. एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर, हर मीटिंग का सीरियल नंबर रहेगा. ठीक है, हर एक बोर्ड मीटिंग का सीरियल नंबर होता है. नोटिस जो भेजा गया, नोटिस का प्रूफ रखना है. एजेंडा, नोटिस, नोट्स टू एजेंडा, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड. अ मीटिंग में बी हेल्ड एट एनी टाइम ऑफ प्लेस, एनी टाइम, इन प्लेस, ऑन एनी डे, किसी भी समय किसी भी जगह में हो सकता है, ऑन एनी डे. ओके, एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड करना है, नेशनल हॉलीडे में नहीं होगा. जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 22 अक्टूबर, ये सब क्या है, नेशनल हॉलीडेज, इस दिन में नहीं हो सकता है. इसके तो मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी टाइम, ओके, इन एनी प्लेस, ऑन एनी डे, बट it should exclude the national holidays. Okay, the act that has further prescribed, क्या prescribe कर रहा है, under section 173(4) क्या बोल रहा है, section 173 subsection 4 क्या, penalty of ₹25,000 on every officer of the company whose duty was to send notice but has failed to do so. जिसका ड्यूटी क्या था, नोटिस भेजने का, बस उसने भेजा नहीं है. ठीक है, तो तब क्या होगा, under section 173 section 173 under section 4 of Companies Act 2013 states that ₹25,000 on every officer, a penalty will be levied for not doing his work of sending the notice. तो sending of the notice का भी proof हर कंपनी को रखना पड़ेगा. ठीक है, everything should be maintained so that it does not goes against the person who is sending the notice. Content of the notice, the date, the time and the venue of the meeting. ठीक है, कौन से दिन में हो रहा है, कौन से समय में, और उसका वेन्यू देना है. The agenda, list of items to be discussed, जो एजेंडा बने क्या क्या डिस्कस होगा उस मीटिंग में, उसको भी देना है. ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ नेसेसरी फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर है, जैसे कि नोट्स टू एजेंडा हम जो बोलते हैं, वो भी हमें देने हैं इसी नोटिस में. एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा नोटिस का स्टार्टिंग होगा, सेक्शन 173(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and relevant provisions of the secretarial standards on meetings of the board of directors SSI 1 issued by ICISI. Notice is hereby given that the meeting of the board of directors of company name this, मतलब किस सेक्शन 173 क्या बोल रहे हैं, इस टाइप का होना चाहिए. सेक्शन 173(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड SS1. ठीक है, ये दोनों क्या है, लीगल legally they are binding board meetings. So notice कैसा होना चाहिए, अब क्या स्टेट कर रहे हैं, notice is hereby given that the board of directors meeting of a company ABC कंपनी पकड़ लेते हैं, is scheduled to be held on particular date at particular time at particular venue to transact the following business. ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ द नोटिस होगा. क्या क्या है, डेट दिया, कंपनी के नाम मेंशन किया, टाइम दिया, वेन्यू दिया, क्या क्या मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा. टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस इफ एनी. ओके, अगर लीव ऑफ एब्सेंस, कोई अगर एब्सेंस नहीं, एब्सेंस हो मीटिंग से, तो उसका ग्रांट करना इफ एनी. टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, प्रीवियस बोर्ड मीटिंग जो हुआ था उसका जो मिनट्स तैयार हुआ था उसको कंफर्म करने के लिए. राइट, टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीरियड एंडेड डेट, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए, इसको कंसिडर करने के लिए. टू रिव्यू एंड डिस्कस बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजीज, कोई भी बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन करना है, स्ट्रैटेजीज. टू कंसिडर एंड अप्रूव एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इफ एप्लीकेबल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे डीलिंग करना है, उसको ट्रांजैक्शंस करने या बात करना है, अप्रूव करना है, तो उसी का भी यहाँ पे आएगा. टू डिस्कस एनी एंड अप्रूव एनी मेंशन एनी अदर स्पेसिफिक एजेंडा आइटम्स, कोई भी एजेंडा. ये क्या है, दिस एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. एजेंडा ऑफ द मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द एजेंडा, मतलब व्हाट आर टू बी डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर मीटिंग शुड बी गिवन इन दिस वे. ठीक है, एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर, परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी के परमिशन पे कोई भी बिजनेस अगर हो सकता है तो वो एजेंडा मीटिंग में इंक्लूडेड रहेगा. तो हम देख रहे हैं लीगल प्रोविजंस के सेक्शन 173 एंड SSI क्या बोल रहे हैं, टाइम, डेट, डे, वेन्यू रहेगा, साथ में एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या डिस्कशन होगा, सब कुछ यहाँ पे रहेगा. एंड नोट्स टू द एजेंडा, इसी के साथ कोई अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे देने पड़ेंगे. ठीक है, लीगल प्रोविजन सेक्शन 173 द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स बोर्ड मीटिंग्स. ठीक है, 173 कंपनीज मीटिंग को
कंपनीज एक्ट 2013 क्या करते हैं, गवर्न द बोर्ड मीटिंग्स एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड I1, secretarial standard 1, that is SSI, issued by ICSI also provides guidelines for sending notices. guidelines क्या क्या देता है, हमने अभी देखा क्या क्या guidelines दिया है कि नोटिस जिस तरीके से बोला गया है, डायरेक्टर ने किसी ने अप्लाई किया तो उस पर्टिकुलर वे से आएगा, ठीक है, और नोटिस का फुल डिटेल्स रखना पड़ेंगे, एवरीथिंग, वी जस्ट डिड इट. अब क्या नॉन कंप्लायंस का, इफ अ प्रॉपर नोटिस इज नॉट गिवन, अगर प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, डिसीजन टेकन इन द मीटिंग मे बी चैलेंज्ड. कोई भी डिसीजन अगर प्रॉपर मीटिंग नहीं, नोटिस नहीं दिया गया था, तो जो भी डिसीजन लिया गया उस पर्टिकुलर मीटिंग से उसको चैलेंज है, स्टैंड्स चैलेंजमेंट, इट द क्वेश्चन कम्स इनटू इट्स अप्रूवल, ठीक है. डायरेक्टर्स में बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन कंप्लायंस. कोई भी डायरेक्टर अगर कंप्लाई नहीं कर रहे, मीटिंग को अटेंड नहीं किया, तो वो भी दे कैन ऑल्सो बी हेल्ड फॉर नॉन कंप्लायंस. ओके, एंड इफ देयर इज अ केस ऑफ एनी ऑफिसर नॉट सेंडिंग द मीटिंग, देन वी जस्ट सॉ कि 25,000 ऑन द ऑफिसर, इट विल बी levied on the officer who will be responsible for sending the notice of the meetings to the directors concerned, right? According to Companies Act 2013 and related amendments thereto, to whom a notice of a board meeting is required to be sent. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चन में हम देखते हैं फाइनल्स में कि एक क्वेश्चन आ रहा है, whether a board meetings notice be sent to an independent director, an alternate director, or a person director who has been asked, who has stays abroad. तो ये सब टॉपिक पे हम अब डिस्कशन करेंगे. लेट्स सी what is said. As per section 173 of the Companies Act 2013 and Secretarial Standard 1 SS1 on board meetings, the notice of a board meeting must be sent to the following persons. कौन किस किस को देना है? All directors of the company. So notice must be given to every director including independent and nominee directors. Nominee directors है उनको भी देने हैं, independent directors उनको भी देने हैं. It must be sent at least 7 days before the meeting unless the articles of association prescribe a longer period notice. अगर articles of association provide करते हैं 7 दिन से ज़्यादा है, ज़्यादा दिन में provide करना है, that is otherwise, नहीं तो 7 days के अंदर, 7 days before meeting के women send करें to all the directors of the company. Second है alternate directors if applicable. If an alternate director has been appointed under section 161(2) of the Companies Act 2013, the notice should be sent to them as well. पहले तो हर डायरेक्टर को भेजना है, नॉमिनी डायरेक्टर को भेजना है. सेकेंड है alternate director, ठीक है. Interested director. An interested director who has a personal interest in a transaction discussed at the meeting must still receive the notice. अगर कोई भी डायरेक्टर है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्यों बोला जा रहा है, किसी भी कोई मीटिंग में कोई ट्रांजैक्शन होगा, डीलिंग होगा, जिसमें डिस्कशन होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसी ट्रांजैक्शन पर्सनल इंटरेस्ट है, देन ही विल बी हेल्ड एज अ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो ही शुड ऑल्सो रिसीव द नोटिस. हाउएवर, एज पर सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर मस्ट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एंड एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन द रिलेटेड मैटर. तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसका केस में क्या है, 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, अगर if a particular director is interested in a particular case, his personal interest is involved, in that case he should disclose his interest, okay, and he should abstain from voting in the related matter, okay. And director who has gone abroad, कोई भी अगर director who has gone abroad but the meeting is going to held, so notice has to be sent to him also, okay. The notice should be sent via electronic means, email, WhatsApp, etc. to ensure timely delivery, okay. If required, such data may participate in the meeting through video conferencing or audiovisual means as per rules 3 of the company's meetings of board and its power rules 2014, ठीक है. अगर कोई डायरेक्टर है जो अब्रॉड गए हैं तो वो भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दैट इज ईमेल और व्हाट्सएप, उनको भेजना है नोटिस, सो दैट बिफोर 7 days इट रीचेस हिम, ओके. इफ रिक्वायर्ड वो क्या कर सकते हैं, वो अगर वो वोटिंग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट इन द मीटिंग करना चाहते हैं, आइदर दे ही कैन डू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियोविजुअल मीन्स, राइट. दिस स्टेटेड इन रूल 3 ऑफ द कंपनीज meetings and board rules 2014. Director who has expressed inability to attend the meeting, even if a director has stated that they cannot attend, the notice must be sent, okay, to ensure this ensures compliance and keeps them informed of the proceedings. Yes, कोई भी अगर director ने mention किया है कि he will not be able to attend this particular meeting, तो तब भी उनके पास हमें ये notice भेजने हैं, क्योंकि ये हमारा compliance work है from the company secretary's work or the any other officer who is authorized to send the notice, such notice as per the board's power is if the board has given authorized any particular person to or particular officer to send the notice, that person and the company secretary of the company, then they will be the compliance purpose, they have to keep the director who has expressed an inability to attend the meeting, okay.
Then independent director, क्यों क्या होगा? Independent directors are a part of the board and must be notified like any other director. Okay, if look at, they may join the meeting remotely via video conferencing. Independent director जो है वो remotely इसको via video conferencing join कर सकते हैं. अदर इन्वाइटीज इफ एप्लीकेबल बट नॉट मैंडेटरी, अगर कोई इन्वाइटीज है जो ये मेंशन करना चाहते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है बट इफ एप्लीकेबल, कोई पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए अगर है तो इन दैट केस यू हैव टू. व्हाट आर द कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड फॉर कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स, कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स उनको बुलाना है. स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स इन इफ देयर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल डिस्कशंस, किसी भी फाइनेंशियल डिस्कशंस के लिए अगर किसी स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स की मौजूदगी की ज़रूरत है तो इन दैट केस ही शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड. ओके, दिस इज नॉट मैंडेटरी इफ एप्लीकेबल केस. यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, देखिए, ऑल इनवाइट अदर इनवाइटीज इफ एप्लीकेबल. ओके, की मैनेजर पर्सन्स KMPs और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इफ नेसेसरी, अगर किसी की जरूरत पड़ेगा की मैनेजर पर्सनल्स के या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के तो उनको भी देने हैं. ठीक है, टेक अवे क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 mandates that every director without exception के सिवा must receive the notice of the board meeting. Whether they attend or not is a separate matter, but the company must follow the due process of giving the notice to the every director at least 7 days before the holding of the meeting. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जस्ट एक शॉर्ट एग्जाम्पल, कौन कौन डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे. लेट्स सी, here are some practical examples of directors who must receive the notice of the board of meeting as per section 173 of the Companies Act 2013 and secretarial standard 1 as issued by ISCI. ठीक है, directors who must receive the notice, किसको receive it? Executive director ED, managing director MD. Example, Mr. A, the managing director of the company, must receive the notice. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस रिसीव करना है. होल टाइम डायरेक्टर WTD शॉर्ट में. एग्जाम्पल, मिस्टर MSB, the whole time director is actively involved in the company's operations and must be notified, must be given the notice. ठीक है, the executive director, managing director should receive the notice. Whole time director should also receive the notice. Then independent director, example, Mr. C, an independent director appointed under section 149 of the Companies Act, must receive the notice. Independent director को भी receive करना है. Nominee director, Mr. D, nominated by financial institution as a nominee director, must receive the notice. The nominee director को भी notice receive करना है. Interested director, if they have a conflict of interest in an agenda item, कोई भी item है जो agenda में है जो discuss होगा उस पर उनका personal interest है, he also should be receiving the notice. Mr. E, a director who holds shares in the company with which a contract is being discussed. अगर particular कोई भी particular contract है जो उसमें वो एक होल्ड कर रहा है shares particular director, तो उसी कंपनी के साथ हम अगर ट्रांजेक्शंस करने जाएंगे तो ही इज इंटरेस्टेड. इन दैट केस वेदर विल ही रिसीव द नोटिस और नॉट? यस, मिस्टर ई, अ डायरेक्टर हु होल्ड्स शेयर्स इन अ कंपनी विद व्हिच अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड मस्ट स्टिल रिसीव द नोटिस दो ही मे abstain from voting. Director who has gone abroad, notice must be sent electronically to, for example, let F, a director currently in the USA for her business trip must receive the notice via email or WhatsApp in such a time so that delivery reaches him before 7 days. Okay. Director who has expressed inability to attend meeting still must receive notice for compliance purposes. Example, Mr. G, who informed the company he cannot attend the meeting, must still receive the notice. Alternate director, if appointed under section 161(2) subsection 2, Mr. H, an alternate director appointed in place of Mr. I, must receive the notice instead of the original director. अभी Mr. H है alternate director, किसकी जगह में? Mr. I की जगह में. ठीक है, तो Mr. I की जगह में alternate director को replace किया गया. जितने दिन के लिए दिया गया है Mr. I को, तो तब तक Mr. I should receive the notice of the meeting. Additional director, if appointed under section 161(1), example, Mr. J, MSJ, an additional director appointed at a previous meeting must be notified. कोई additional director रखा गया particular meeting के लिए तो he or she should be notified. Casual vacancy director, if appointed under section 161(4), अगर कोई casual vacancy director है, ठीक है, Mr. K appointed due to a vacancy in the board must receive the notice. मैंने अगर वो casual vacancy टाइम में जहाँ पे वैकेंसी उसी टाइम में किसी को डायरेक्टर रखा गया तो उसको भी नोटिस मिलने चाहिए. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंटरेस्ट डायरेक्टर, all should receive the notice. Okay.
who does not need to receive the notice? Resigned or removed director. If a director has formally resigned, उसने resign कर दिया है and the board has accepted it, board ने उसका resignation को भी accept कर लिया, they do not need a notice. Removed director or resigned director, उनका भी अगर है, अगर उसका रिमूवल और रेजिग्नेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड तो उनको देना नहीं ज़रूरी है, ठीक है. हम इसके बाद में कभी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेजिग्नेटेड डायरेक्टर और अ डायरेक्टर हु हैज़ बीन रिमूव्ड, कीप इट करेंगे, ठीक है, डिस्कस. तो लेट्स अभी क्या बोल रहे हैं, कोई भी अगर रिजाइन किया है या रिमूव डायरेक्टर है, केस को एक्सेप्ट कंपनी ने कर लिया है, इन दैट केस इट शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है. देन कंक्लूजन, एवरी पर्सन हु हैज़ बीन, ओके, conclusion, auditors or company secretary unless specifically invited, they are not board members and do not have the right to receive notices. Okay, so auditors or company secretary unless specifically invited, they are not board members and do not have a right to receive notices unless needed. अगर notice नहीं चाहिए तो उनको हमें देना नहीं है, ठीक है. Conclusion, every person who holds a dictatorship position must be sent the notice. Mode of delivery क्या है, hand, post, courier or electronic means. Deadline at least 7 days before the meeting unless articles of association specify otherwise. तो जो भी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करे उसको नोटिस मिलना चाहिए. मोड ऑफ डिलीवरी जिस वे में था उसी वे में देना है जो मेंशन किया गया है फर्स्ट में, हैंड, पोस्ट, कुरियर और इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड 7 days बिफोर द मीटिंग unless otherwise provided in the articles of association. Thanks for watching.